हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्नविज। होप आप सारे अच्छे होंगे। आप लोग का प्यार सपोर्ट जो हमारे सोशल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, कीप प्रोवाइडिंग द सेम सपोर्ट्स। एंड अगेन सेम थिंग, यू आर वाचिंग द वीडियोस बट लॉट ऑफ पीपल हैव आफ्टर वाचिंग डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल. So kindly subscribe our channel and also follow on our social media platform so you will get a regular update our video is coming. Okay, and also along with that, okay, participate in the quiz. The quiz is going, it is along with the knowledge you have a chance to win the prize. Okay, so you can see all the links you can see on the top. You are getting Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter. Everywhere our name is LearnWith. Just type a LearnWith and follow our channels. Okay, and regular update you will get it. Okay, so now in this video we are right now starting some previous year board questions. Okay, and we will discuss and that will help you how you can tackle the questions in 2024 to 25 ongoing boards. And along with that, our Telegram channel, you can get all the content of previous year along with the solution of the science material also. And also we are trying to bring the 12th material, 12th board examination material also. So follow that one. So you will get regular updates, okay, on our Telegram channel. Okay, because आप subscribe करोगे आपकी benefits होगी. Okay, and again, don't follow the shortcut. First understand the concepts and then follow the shortcuts. That is the best way to start. Okay, so let's start the our videos, and this video is basically about a previous year question paper, okay, of a polynomial and pair of linear equation. Same you will get a other topics video also soon on our YouTube channels. Okay, so keep subscribe that. Now you can see this paper is 2024 question of polynomial. The question is saying what should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zeros of the polynomial of resulting polynomial. मतलब आप क्या ऐड करोगे x square minus 5x plus 4 में, so the 3 is the zero of the resulting polynomial. 3 जो है आपका resulting polynomial का zero हो जाए. तो we can say, okay, let's fx is equal to x square minus 5x plus 4. Now here we will say, hey, let add p to polynomial fx. Okay, then 3 become 0, then 3 becomes 0. Okay, this is a MCQ question again. So we can say, hey, f3 plus p is equal to, here we can say x square minus 5x plus 4 plus p is equal to 0. जब भी आपका कोई भी पॉलिनोमियल किसी का 0 होता है तो वो वैल्यू पुट करने पर हमें आंसर 0 आना चाहिए. And now we can substitute x value. X is already saying it is 3. So we can say 3 square minus 5 times 3 plus 4 plus p is equal to 0. So 3 square is how much you will get? 9 minus 5 times 3. So you will get 15 plus 4 plus p is equal to 0. So now you can add here. So you can say 9 plus 4, you will get 13 minus 15, we will get plus p, we will get 0. Okay, now after all this you can say, so which means here minus 2p minus 2 plus p is equal to 0. So p value is how much you will get? 2. So which means our option B is correct. Hope you understand. So this way we can find this type of MCQ question. Now let's see the next question. It is saying find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relation between 0 and coefficient of polynomial. तो यहाँ पे आपके quadratic polynomial दिए हुए हैं, ठीक है, and
you have to find the zeros. So first you can say here your fx is equal to how much? X squared minus 15. Okay. Now we can say here x square is equal to 0. So you can say x squared is equal to 15. You can transpose the minus 15 to other side. So x squared is equal to 15. So you can say x is equal to how much? Plus minus square root 15. आपका स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, इट विल ट्रांसपोज टू राइट साइड, सो इट बिकम स्क्वायर, स्क्वायर रूट. सो नाउ योर जीरो विल बी हाउ मच? सो जीरो आपके क्या क्या हो गए? तो जीरोस ऑफ द एफ एक्स, आपके एफ एक्स पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे बिकॉज इट इज डिग्री ऑफ टू पॉलिनोमियल. सो एक आपके जीरो होंगे अल्फा, तो अल्फा आपके क्या होंगे? प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड बीटा आपके क्या हो जाएंगे? सो बीटा हो जाएंगे माइनस रूट 15. ठीक है, तो आपके दोनों जीरो निकल गए. अब बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. सो वी ऑलरेडी नो कि हमारे जो पॉलिनोमियल के होते हैं क्वाड्रेटिक, उसके जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो नाउ आप यू कैन सी हियर योर पॉलिनोमियल इज गिवन हाउ मच? fx is equal to x square minus 15, which means you have given the a is equal to how much? 1. Coefficient of x square is 1 and b is equal to 0 and c constant term आपका कितना दिया? minus 15. तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरो निकालते हैं. तो सम ऑफ जीरो हमें रिलेशन भी डिफाइन करना है, तो सम ऑफ जीरोस. So sum of zeros, which means alpha plus beta is equal to how much? We will get minus b coefficient of x by coefficient of x square. So आपके alpha कितना है? Plus root 15 and beta कितना है? Minus root 15 and how much you have b coefficient? 0 and a coefficient 1. So you can see here plus 15 and minus 15, it will become 0 and 0 divided by any number become 0. तो आपका sum of 0 का clear हो गया. Same product of 0 क्या होते हैं? Now product of zeros. ठीक है, तो product of 0 which means alpha times beta is equal to c coefficient of constant term over the coefficient of x square. ठीक है, तो नाउ अब आप देखो आपके अल्फा कितना दिया है? प्लस रूट 15 और बीटा आपको कितना दिया है? माइनस रूट 15. ठीक है, एंड सेम वे आपके कांस्टेंट टर्म कितना दिए हैं? माइनस 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. सो यू कैन से हियर 15 minus 15 is equal to minus 15. So hope you understand how you can derive this one. So यहाँ पे आपका verification भी हो गया, verified भी हो गया. ठीक है, so अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं so you can easily solve now. तो ये दो क्वेश्चन आपको आए थे 2024 में. अब हम बात करते हैं 2023 का क्वेश्चन. जो पहला क्वेश्चन हमारा MCQ है. ठीक है, so you can see the question is saying the graph of y is equal to px is given. y is equal to px का ग्राफ दिया है. For a polynomial px, the number of zeros of px from the graph. तो आपको याद होगा मैंने पॉलिनोमियल में आप लोगों को बताया था जब भी हमारा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट हमारा ग्राफ आता है. तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? एक पॉइंट पे टच कर रहा है. ठीक है, अगर कोई भी आपका कोई भी ग्राफ रहे अगर इस टाइप के हमारे ग्राफ, तो ये कितने जगह पे टच हो रहा है? एक्स एक्सिस को 2. तो यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टेंस रूट्स होंगे, बट ये हमारा एक पॉइंट पे टच हो रहा है तो यहाँ पे 1 रूट्स होंगे या 1 0. तो ऑप्शन इसके क्या होंगे? बी होंगे. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं 2023 का. यहाँ पे बोल रहा है द अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल that p is equal to x square plus x minus 1. Then
1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, बेसिकली आपको 1 ओवर मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आपको वैल्यू यहाँ पे निकालना है, और आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे कितना दिया हुआ है. सो यू कैन सी हियर योर पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इसमें खट से क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स. तो सम ऑफ रूट विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा. आपके अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे आपके a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू आपके 1 दिया हुआ है, एंड c कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -1 दिया है. तो इसके बेसिस पे आपको क्या निकल जाएगा, -1 ओवर 1. तो विच मीन्स सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1. ठीक है, सेम वे आप प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालोगे. तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो विच मीन्स c ओवर a. तो यहाँ पे आपका c कितना दिया हुआ है, -1, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया, 1. सो आपके प्रोडक्ट ऑफ 0 भी कितने आ गए, -1. तो आपके सम ऑफ 0 भी -1, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी -1. तो ऐसे करके आपको कभी भी दिया रहेगा तो आप यहां तक निकाल लोगे. अब आते हैं, हमें वैल्यू निकालना है 1 ओवर अल्फा, मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. ठीक है, इज इक्वल टू, हमें इस दोनों का वैल्यू निकालना है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे. तो अल्फा इंटू बीटा, और नाउ यू कैन सी बीटा plus alpha, and you can write this one also, alpha plus beta over अल्फा इंटू बीटा, बिकॉज आपका एडिशन का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है. तो आप आइदर बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, विच मीन्स सेम. सो नाउ यू हैव अ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा आपकी कितने आए, -1, और अल्फा इंटू बीटा कितने आए हैं, -1. सो आपके आंसर माइनस माइनस कैंसिल, सो आपके आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1. ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या हो गए आपके, ए. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में आते हैं तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और जितने भी सॉल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा आफ्टर दिस वीडियो, सो आप उसको चेक भी कर सकते हो. नाउ अब बात करें अगेन 2023 का हमारा सेकेंड एमसीक्यू क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आप देखो सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो आपके पॉलिनोमियल क्या हो गए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1. बोल रहा है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालने, अल्फा प्लस बीटा. तो सबसे पहले आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हमेशा होने चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कोफिशिएंट ऑफ ए आपका एक्स स्क्वायर क्या, 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, बी 0 दिया हुआ है, एंड कांस्टेंट टर्म आपका कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है. यहां आप निकाल लोगे. नाउ अब जानते हो आपका सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, विच मीन्स कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो आपका b का वैल्यू कितना दिया है, 0 एंड -0, एंड a का वैल्यू कितना दिया, 1. सो विच मीन्स सम ऑफ 0 विल बी कमिंग हाउ मच, 0. सो ऑप्शन डी आपके होंगे. ठीक है, तो अब देखिए 1 मिनट में एमसीक्यू पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट फॉर 1 मिनट. 1 मिनट आपके सफिशियंट है. नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ 2023. सेम आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब केवल डिजिट्स वैल्यू चेंज है. तो इसमें भी आपको देखो क्या बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, यू हैव 4x स्क्वायर -3x -7. तो आप देखो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो यहां पे आप सेम वे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -7 लिख सकते हो. ना अब बोल रहा है यहाँ पे 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का वैल्यू. उससे पहले हम लोग, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू बताया था 2020 का, सेम वे आप सबसे पहले इस दोनों का सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरोस निकाल लो.
तो अल्फा प्लस बीटा आपके क्या हो जाएंगे, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो आपका माइनस बी ओवर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 3/4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 3/4। सेम वे अल्फा इंटू बीटा आपके क्या हो गए, a constant term over coefficient of x square, which means you have -7/4। so आपके कितना हो गए, -7/4। ठीक है, अब आपको निकालना है 1/अल्फा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन में भी, सबसे पहले इस दोनों का आप एलसीएम निकाल लो। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया एलसीएम। सेम वे यहाँ पे क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी बोला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना है, 3/4। तो आप 3/4 लिख दो। देन अल्फा इंटू बीटा आपको कितना है, -7/4। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3/4 डिवाइडेड विथ -7/4। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने माइनस लिख लिया, इसको हटा देता हूँ। हाँ, आपने लिख दिया। अब इसको आप क्या करो, आप फ्रैक्शन जानते हो, फ्रैक्शन डिवीजन, हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन सेम रहेगा, सेकेंड फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाएगा विथ डिवीजन साइन चेंज होने। तो ये क्या हो जाएगा, -4/7। ठीक है, तो ये फोर आपके कैंसिल हो गए, तो आपके आंसर कितने हो गए यहाँ पे, तो 3/, यहाँ पे आपके आंसर हो गए -3/7। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके क्या हो गए, डी हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायरेक्टली। दूसरा चीज, सीबीएसई हमेशा आपसे स्टेप मार्किंग देता है, तो स्टेप कभी भी आप मिस मत कीजिए। स्टेप मिक्स कीजिएगा आपके नंबर डिडक्ट होंगे। सो बेटर डोंट स्किप द स्टेप्स। ठीक है, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 6x² प्लस 37x माइनस के -2 इज अ रेसिप्रोकल टू अदर। मतलब एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और हमें के का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ के क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6x² प्लस 37x माइनस के -2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब बोल रहा है कि यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल, मतलब एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप निकाल लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका क्या होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके यहाँ पे सेम वे आप यहाँ पे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू आपके क्या है, 6 है, b इज इक्वल टू आपके 37 है, एंड c इज इक्वल टू आपके -k-2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेम वे c ओवर a निकाल लोगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके क्या हो जाएंगे, k-2। ठीक है, एंड ओवर 6 हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों निकाला यहाँ पे, तो आप देखो सिंपल बोल रहा है कि आपके एक जो रूट है रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स है। ठीक है, तो अगर आपका एक रूट अल्फा 2 है, ठीक है, तो दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो विच मीन्स इस दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 1। सो यहाँ पे सेम वे आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गए, 1 है। ठीक है, तो विच मीन्स आपके के ये जो वैल्यू है, दिस वन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस k-2/6। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व कर लो, तो आप 6 को ट्रांसपोज कर दोगे, तो 6 इज इक्वल टू -k+2। ठीक है, सो नाउ आपके 2 अदर साइड ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो 6 - 2 इज इक्वल टू -k, which means you have 6 - 2 4 is equal to -k। अब आपका माइनस ट्रांसपोज हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आपको कितना आ गया, 4 आ गया।
ठीक है, सो -4, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको होंगे, सो यू कैन इजीली सॉल्व। अब हम लोग बात करते हैं 2022 का पेपर के बारे में। तो यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन आपको सिमिलर होंगे, रिपीट होंगे, टाइप आपको सेम रहेगा, क्वेश्चन बस रिपीट होंगे। और अगर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा वीडियो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा चेंज कर दिया गया है। बोल रहा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपके एक जीरो दिए हुए हैं। तो वी कैन से हियर the zero is given, so here we will write first polynomial here. So our fx polynomial is equal to how much, k-1 x square plus kx plus 1। ठीक है, एंड आपका एक जीरो दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू -3। ठीक है, नाउ सबसे पहले अब देखो हम लोग सबसे पहले अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें के का वैल्यू निकल जाए। तो अब जब भी कोई एक जीरो दिया है, तो जब आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इक्वेशन का इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है, जब आप वो जीरो का वैल्यू पुट करो तो इक्वेशन इक्वल टू जीरो तो आना चाहिए। तो वी कैन से f -3 इज इक्वल टू k -1 टाइम्स -3 होल स्क्वायर प्लस k टाइम्स -3 plus 1 is equal to 0. तो now you can see k -1 -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका, देन here k -3, so you will get -3k। ठीक है, so plus 1 is equal to 0। नाउ आप यहाँ पे 1 को ट्रांसपोज कर सकते हो और यहाँ पे आप 9 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म जो है आप ऐड कर दो, तो 9k -3k, सो यू विल गेट 6k एंड -9 प्लस 1, सो यू विल गेट -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट आप इसको बोल सकते हो 6k, अब -8 को आप ट्रांसपोज करोगे राइट साइड में, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। नाउ सो k इज इक्वल टू नाउ 8/6। ठीक है, तो अब इसको आप मतलब कॉमन फैक्टर्स के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो, 4 3। ठीक है, क्योंकि दोनों 2 के फैक्टर है, तो आपके आंसर क्या हो गए, 4/3। तो ऑप्शन हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, ए। ठीक है, क्लियर है। देखो सेम मैथड है, हमें इजी वे में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप घबराना नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे इफ द पाथ ट्रेस बाय अ कार हैज अ जीरो -1 and 2 it is given, then it is given। so basically हमें यहाँ पे दो जीरो दिया हुआ है and we have to find its quadratic equation। तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच गिवन, -1 एंड बीटा इज इक्वल टू गिवन 2। ठीक है, आपके और हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो आपको अल्फा दिया हुआ है -1, बीटा दिया हुआ 2। तो सबसे पहले ना आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका, -1 प्लस 2, तो आपके क्या हो गए, निकल गए 1। ठीक है, सेम में अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल लो, तो -1 टाइम्स 2, सो यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -2। ठीक है, आपके सम ऑफ जीरो भी निकल गए, प्रोडक्ट। एक फॉर्मूला होता है सिंपल पे, जब भी आपके सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे ना, आप इस फॉर्मूला को यूज करो। सो पी एक्स योर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जब भी आपको कभी भी सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ एंड दे आर सेइंग हे फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें पाथ ट्रेस बाय अ कार निकालना है। ठीक है, उसका इक्वेशन।
So we can now substitute the value. So x square minus alpha plus beta आपका कितना निकला है? 1. So you can say here 1 times x and alpha into beta कितना निकला है? -2. So अब आप फाइनल सॉल्व कर लो. So you can get x square minus x and -2. So now अब आपके कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे? You can see option C is your correct. So hope you understand this one. Now तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो. अगेन ये क्वेश्चन आपको फिर पूछा गया कर्व, यहाँ पे कितने जीरो होंगे. ठीक है, मैंने 2024 में भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय होल कर्व. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट. तो 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए? ए हो गए. ठीक है, सो दिस वे यू कैन फाइंड दिस वन. नाउ कमिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2022. अब हम 2022 का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. बोला डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी. तो सबसे पहले हम लोग सी का देखते हैं पॉइंट. सी पॉइंट यहाँ पे है और इसका वैल्यू कितना दिया? -1. ये एक्स एक्सिस से -1 पे टच हो रहा है. सेम वे आपका जी का पॉइंट कितना है? 5 है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलती करते हैं. दे आर डेफिनेटली फाइंड दी सबट्रैक्ट. सो दे विल से हे 5 - 1, सो यू विल गेट 4 यूनिट. नहीं, वो गलत है. सबसे पहले आप देखो यहाँ से -1 से आपका ओरिजिन का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट है. ठीक है, 1 यूनिट दिया है. फिर आपका ओरिजिन से 5 का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पे आपका 5 यूनिट है. ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आपके कितने निकल जाएंगे? टोटल डिस्टेंस सिंपल 1 + 5, तो आपके टोटल डिस्टेंस 6 यूनिट निकलेंगे. ठीक है, 6 यूनिट्स. तो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए? बी हो गए. तो अगेन ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए. तो आप ध्यान रखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप -1 से ओरिजिन का डिस्टेंस ले लो 1, फिर ओरिजिन से आपका जी तक का. अगर यहीं पे बोला आपको ए टू जी का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो अब देखो ए से आपका ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया. एंड देन आपका ओरिजिन से आपका जी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया. तो 3 + 5, सो 8 यूनिट्स. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के. यहाँ पे बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द सम ऑफ वो जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज. देखो मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन आपको आ गए, तो सेम वे आप बोलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज. अब यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे ध्यान रखना सम आपका फर्स्ट वाला है एंड प्रोडक्ट आपके सेकंड वाले दिए हुए हैं. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही कभी कर दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो सम हमेशा फर्स्ट क्लियर रहेगा, तो हमेशा फर्स्ट वाले को सम लेना है. तो सम ऑफ जीरो इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 6. तो मैंने आपको इक्वेशन बताया कैसे हमें इक्वेशन निकालना है. सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो आप सिंपल यहाँ पे क्या कर दोगे? एक्स स्क्वायर सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. सम ऑफ जीरो आपके कितने हो गए? -5 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6. तो आपके इक्वेशन क्या हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या हो गए? ए हो गए. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है. अब बात करते हैं 2021 में क्वेश्चन के बारे में. तो बोल रहा है इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2. अगेन आपका 1 0 दिया हुआ है एंड दे आर सेइंग टू फाइंड द वैल्यू. तो वी कैन से हे अल्फा इज इक्वल टू 2 and our px is equal to how much? X square plus 3x
प्लस के, ठीक है। तो अगर एक जीरो दिया हुआ है तो हम उस जीरो का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से P2 इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 plus k is equal to 0. So which means 2 square is 4, 3 times 2 6 plus k is equal to 0. ठीक है? Now which means 10 plus k is equal to 0. So k is equal to how much you will get here? Minus 10. ठीक है? So hope you got it. कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है? Now, so these are the up to 2021 क्वेश्चन पेपर ऑफ द क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आपको और भी मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा 2020 का 19 का जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको ग्राफ का रहेगा, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरा आपके जीरोस के वैल्यू निकालने आएंगे, जैसे यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है। तीसरे टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे। चौथे क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है जहां पे आपको 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा का वैल्यू निकालना होगा, वो भी आपके आ सकते हैं। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको मिस नहीं करो। अब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है उसको लेके तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली जितना मेरे से हेल्प होगा आपको मैं हेल्प करूंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ। प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा हैज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा मैथ एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2024 से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन हमारा दिया है एमसीक्यू, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको हिंट पता होना चाहिए और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम वे सेकेंड इक्वेशन माइनस 3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1 हैज। तो अभी आपको देखना है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट्स, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, मतलब एग्जैक्टली दोनों सॉल्यूशन के बीच में टू कॉमन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन्फिनाइट में क्या होता है, हमारा कोइंसिडेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले, और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का भी मैं आपको टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होता है। सेम वे आपका सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 सेकेंड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो सेम इसी वे में हम अपने फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे a1 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b1 आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। एंड c1 आपके क्या दिए हैं, 5 दिए हुए हैं। बट सेकेंड इक्वेशन देखो थोड़ा सा उटपटांग दिया हुआ है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अरेंज देम। So we can say minus 3x is equal to 6y minus 1. So now you can transpose all the terms from one side to another side. So we can say here simple, 3x plus 6y minus 1 is equal to 0. So here you can say a2 is equal to given how much, 3, and b2 is given 6 and c2 is given minus 1, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दैट आपको याद होगा यहां पे हम लोग सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, a1 ओवर a2। तो a1 ओवर a2 आपका कितना रेशियो आ जाएगा, 1 ओवर 3। सेम वे आप b1 ओवर b2 का रेशियो निकाल लो। सो b1 ओवर b2 का रेशियो आपका कितना आ गया, माइनस 2 ओवर
6। तो आपका आ गया 1/3, कॉमन फैक्टर 2। सेम वे आपका C1/C2, तो C1 आपका कितना दिया 5 एंड C2 -1। ठीक है, तो विच मीन्स -5/1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे A1/A2 is equal to B1/B2 and not equal to C1/C2। तो याद होगा जब भी हमारा इस टाइप का होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कैसा बनता है, नो सॉल्यूशन, तो वी कैन से नो सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ कमिंग अबाउट दिस सेकेंड क्वेश्चन, हियर अगेन दे हैव गिवन द टू इक्वेशन। 2024 का क्वेश्चन है, 2x plus y is equal to 13, 4x minus y is equal to 17। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो सबसे पहले सिंपल है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, सो यू कैन यूज एनी मैथड हम यूज करेंगे। और उसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास मैथड क्या क्या है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो जिसको एलिमिनेशन पसंद है वो एलिमिनेशन यूज कर सकता है, जिसको सब्स्टिट्यूशन पसंद है सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मैथड स्पेसिफाई नहीं किया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एलिमिनेशन मैथड। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x plus y is equal to 13। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus y is equal to 17। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आपको याद होगा एलिमिनेशन मेथड कभी भी हमें निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट देखते हैं। तो हमें कौन सा टर्म यहाँ पे एलिमिनेट करना है, y। तो y का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट देखो कितना 1, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है -1। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड इक्वेशन को 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, -2x minus y is equal to -13। ठीक है, उसके बाद आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो। सो यू विल गेट हियर 4x minus y is equal to 17। same way equation 2 minus 2x minus y is equal to -13। now second equation sign will change, so minus become plus, and here also minus become plus, and this -13 become plus. Now after that you can solve this one, so you will get how much here, 17 plus 13 you will get 30, and minus y plus y become 0, and 4x plus 2x, so 6x। so x is 6x is equal to 30 आ गया, और तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 30/6, सो यू विल गेट 5। तो आपकी x के वैल्यू 5 निकल गए। अब आप x का वैल्यू किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा इक्वेशन क्या है, 4x, हमने सेकेंड इक्वेशन लिया, 4x minus y is equal to 17। नाउ सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू, सो 4 times 5 minus y is equal to 17। ठीक है, so you will get 20 minus y is equal to 17। now minus y, you can take a 20 to other side, transpose, so 17 minus 20, so you will get minus y is equal to how much, -3, so y is equal to 3। अब देखो आपके x और y के वैल्यू दोनों के निकल गए। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, x माइनस y हमें निकालना है, तो x minus y, now x you got 5 and y you got 3, so you have to find here x minus y, so x minus y आपको निकालना है, so you can say -3 is equal to how much, 2। तो ये आपके आंसर हो गए। होप यू गॉट इट। सो ये भी आप देखो कितना इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप इजी वे में निकाल सकते हो। नाउ कमिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग हियर अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन बोल रहा है कि 2x प्लस के वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बट डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, विच मीन्स हमारा पैरेलल लाइन है। तो आपको याद होगा अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया था, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो सेम वे यहाँ पे देखो आपका a1 कितना आ गया, a1 5, b1 हो गया आपके 2 एंड c1 हो गए आपके माइनस 7। सेकेंड इक्वेशन में आपका देखो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू k एंड c2 इज इक्वल टू 1। तो हमें c2 से मतलब नहीं है, तो सिंपल वी कैन से इट इज अ पैरेलल लाइन इक्वेशन। सो a1 ओवर a2, तो a1 ओवर a2 आपके कितने निकल गए, 5 ओवर 2। सेम वे यू कैन से b1 ओवर b2, तो b1 आपके कितने दिए हैं, 2 एंड b2 k दिया है, ठीक है, और ये पैरेलल है, सो विच मींस वी कैन से a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वल कर दो, दोनों रेशियो को, 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 ओवर k, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5k इज इक्वल टू 4। सो k वैल्यू इज हाउ मच, 4 ओवर 5। होप यू अंडरस्टैंड दिस वन, इजी है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 2000, यहाँ पे आप देखो आपके क्या दिए हुए क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 2024, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन for x and y algebraically. Equation is x plus 2y. So we can write x plus 2y is equal to 9. So this is our first equation. Okay. Second one, it is given y minus 2x is equal to 2. So this is second. And now it is saying algebraically. सो अलजेब्रिक का मतलब है आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी या एलिमिनेशन से। तो अगेन मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी देखो आपको डिपेंड करता है आपको क्या एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, +2, or what is the coefficient of y in first equation, second equation, +1. So first equation you can multiply with 1 and second equation you will multiply with 2. तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपका सेम आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, सो माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ तो अभी आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। तो अगेन यू कैन से, सो वी कैन से 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। नाउ योर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो नाउ चेंज द सेकेंड इक्वेशन, सो x become negative, y become negative and 9 also become negative. So 4 minus 9, so you will get minus 5. Now same way plus 2y minus 2y become 0 and minus 4x and minus x, so become minus 5x. So which means you will get minus 5x is equal to minus 5. So x is equal to how much, minus 5 over minus 5. So x you will get 1, ठीक है, 1 आ गया आपका। अब इस 1 को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो लेट वी विल टेक अ सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन y minus 2x is equal to 2. So y minus 2 times 1 is equal to 2. So y you will get how much, minus 2 is equal to 2. So how much you will get y, so y is equal to 2 times plus 2, so you will get 4. Okay,
Hope you understand this one. So this way you can find the value of x and y. ठीक है. Now coming about next question में हम बात करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 2020, बोल रहा है कि चेक वेदर द पॉइंट -4, 3 lies on both line represented by linear equation x plus y plus 1 is equal to 0, x minus y is equal to 1. तो सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, x plus y plus 1 is equal to 0. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं. So we can say x plus y is equal to -1. Same way, this is your equation 1. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो गया, x minus y is equal to 1. तो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आपकी टाइम भी सेव हो. तो अब सबसे पहले आप क्या करो, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है कि वेदर इट इज लाइंग ऑन द नॉट. सो वी कैन से एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है. तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस x minus y is equal to -1 plus 1. So how much you will get here, remove the bracket, so x plus y plus x minus y, you will get 0. Now you can see y is plus and minus, so y become 0, so x become 2x is equal to 0. So x is equal to how much you will get here, basically 0 over 2, you will get 0. Now same way you can put x value in any equation. तो हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. सो x वैल्यू इज 0 प्लस y इज इक्वल टू -1. So y is equal to -1. So which means your coordinate of x comma y will be how much? You can say 0 comma -1. ठीक है. So what the equation that is 0 comma -1. So आप लिख सकते हो hence point -4 comma 3 does not lies on both lines. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. ठीक है. तो मेक श्योर कि आप उस चीज को क्लियर रखना. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज. मतलब आप देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन ग्राफ दिया है. ठीक है. तो आपको बताना है कि कौन सा है. तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ वन सॉल्यूशन, consistent with infinite many solution. So consistent with infinite मतलब coincident, मतलब overlap, दोनों लाइन overlap करता है. inconsistent का मतलब no solution. ठीक है. inconsistent but made consistent by existing the line. inconsistent मतलब लाइन को exist करेंगे और एक पॉइंट पे आके दोनों का इक्वेशन बनेगा. तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है, अगर हम दोनों लाइन को एक्सटेंड करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये दोनों लाइन कहीं पे जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेगा. ठीक है. तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन तो हमारा है नहीं, पहली चीज पैरेलल होता तो क्या होता, सिंपल ऐसा होता पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन तो कहीं ना कहीं कभी नहीं मीट नहीं करता, बट यू कैन सी बोथ लाइंस विल मीट समवेयर. So we can say, but only one point it will meet. So we can say consistent with unique solution. Hope you getting? Now, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन. बोलता है solve the following linear equation 7x minus 2y is equal to 5, 8x plus 7y is equal to 15 and verify. तो अगेन यहाँ पे आपका सेम लीनियर इक्वेशन है, आप इसको खुद से ट्राई करो, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जैसा भी आपको है, और उसके बाद दोनों जीरोस आप निकालो, दोनों का सॉल्यूशन निकालो x एंड y का, एंड उसके बाद यू कैन वेरीफाई जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन,
एंड यू विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS, जो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन के वीडियो में किया है, सो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो दिस इज इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एज बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस बहुत होता है वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो सबसे पहले 3 year ago Rasmi was thrice as old Najma, and 10 year later Rasmi will be twice old as Rajma. How old Rasmi and Najma now? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में बताया है। तो जब भी इस टाइप के एज बेस्ड क्वेश्चन हो, हमें थोड़ा सा टेंस का काम करना है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हमेशा हम एज जो लेते हैं, लेट्स यहाँ पे दो के बारे में बात हो रहा है, रश्मि और नजमा। तो वी विल से हे लेट द एज ऑफ रश्मि, प्रेजेंट एज, वी कैन से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि इज एक्स। ठीक है, हमेशा प्रेजेंट एज को वेरिएबल्स लेना है, एक चीज को आपको याद रखना है। सेम वे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नजमा, नजमा इज वाई। ठीक है, आपने दोनों का एज ले लिया। अब बोल रहा है यहां पे, देखो दो कंडीशन बोल रहा है, 3 year ago। 3 year ago का मतलब पास्ट। जब हम कभी भी प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो हमेशा एक चीज यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं, इफ यू गोइंग विद द प्रेजेंट टू पास्ट, प्रेजेंट टू पास्ट, so you will always subtract, do the subtraction। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। एक एज बेस्ड क्वेश्चन इस साल आने का बहुत ज्यादा चांस है, और कभी भी प्रेजेंट से फ्यूचर में हम लोग जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर। ठीक है, तो ऑलवेज वी विल डू एडिशन। ठीक है, तो यहां पे सेम वे हमारा बोला 3 year ago, तो 3 year ago रश्मि का एज क्या हो जाएगा, सो रश्मि एज इन 3 year ago, रश्मि's age will be x minus 3। नाउ सेम वे नजमा भी 3 year ago जाएगी, तो नजमा 3 year ago एज, नजमा's 3 year ago एज विल बी y minus 3। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है, 3 year ago रश्मि was thrice as old as रजमा। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ मतलब according to question, steps is very important, again I'm repeating, steps is very important। So we can say, hey, Rasmi was thrice as old as Rajma, so we can say x minus 3 is equal to 3 times y minus 3। So based on that you can find the equation। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x minus 3 is equal to 3y minus 9। ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वेशन, सो y को आप ट्रांसपोज कर लो, तो x minus 3y, and this 9 will transport that side, so minus 9 plus 3। so your equation, first equation you will get x minus 3y is equal to minus 6। ठीक है, this is your first equation। now अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, 10 year later रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नजमा। मतलब अब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे सेम वे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, रश्मि's एज, रश्मि's एज 10 year ago, so 10 year ago means future, so we can say x plus 10। now same way najma age, najma's age will be how much, you can say y plus 10। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड लाइन में बोल रहा है 10 year later रश्मि विल बी ट्वाइस हैज ओल्ड एज रजमा। सो विच मीन्स हमारा रश्मि का एज, रश्मि के एज से 2 times,
तो रश्मि का एज है अभी x प्लस 10 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो यू कैन सॉल्व दिस वन। सो यू विल गेट x प्लस 10 is equal to 2y plus 20. Okay, so x is equal x minus 2y is equal to 20 minus 10. So x minus 2y is equal to 10. So this is your second equation. So first equation भी आपको मिल गया, second equation। अब आप चाहो तो इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो होप यू गॉट इट। तो इसको आप खुद से सॉल्व करो, मैं और खुद से सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दूंगा। ठीक है, सो होप इट्स क्लियर। नाउ कमिंग अबाउट 2023 पेपर, 2023 का हम पेपर देख रहे हैं। तो नाउ यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट इज वेरी इजी। So the pair of linear equation 2x is equal to 5y plus 6, and second equation 15y is equal to 6x minus 18 represent two lines. So whether intersecting, parallels, coincident, or either intersecting or parallel. Same way आप सबसे पहले equation को standard form में ले आओ, 2x minus 5y माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेम वे 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल, मैंने आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए, तो a1 ओवर a2 निकाल लो, तो दैट इज 2 ओवर 6, सो यू विल गेट 1 ओवर 3। Same way, you can find b1 over b2. So you will get minus 5 over minus 15. So you will get what? Again 1 over 3. Now, same way, c1 over c2. So you will get what? Minus 6 over minus 18. So आपका क्या हो जाएगा? 1 over 3. Now यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, so आपका a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। तीनों इक्वल आया, दैट इज 1 ओवर 3, मतलब तीनों का रेशियो सेम आया। सो विच मीन्स हमारा ये लाइन कैसा बनेगा? को इंसिडेंट बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे आप करके सॉल्व कर लोगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 1 and second one x plus ky is equal to 5 has a unique solution, x is equal to 2, पहला चीज बोला unique solution which means intersecting lines, and here x is equal to 2, y is equal to 1, so find the value of k। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इक्वेशन क्या लेंगे? x प्लस ky इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो हम लोग x और y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दो इक्वेशन दिया, सिंपल आपको x का वैल्यू दे दिया, y का, तो अब सेकेंड इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट करोगे, सो 2 प्लस हाउ मच y वैल्यू 1, k is equal to 5, so you can say k is equal to 5 minus 2, so k value is equal to how much? 3, which means your option C। ठीक है, तो एमसीक्यू पे अगेन ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना फास्ट करना, हाँ बट गलत मत करना। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ सेम वे यहाँ पे सेम आपके क्वेश्चन दिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेम वे आप यहाँ पे निकालोगे, यू विल गेट आंसर, तो वैसे इसके पैरेलल लाइन होंगे, दैट्स डी। तो आपको पता है कैसे निकालना है, सेम वे a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, तो उसके बेसिस पे आपके निकल जाएंगे। ठीक है, नाउ coming with the next question, it is saying solve the equation by the graphical method, solve the pair of equation x is equal to 5 y is equal to 7 by the graphical method। देखो ये तो बहुत easy है,
आपको सिंपल है, आप ऐसे ग्राफ बनाओ, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। सो मेरे पास ग्राफ पेपर मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइन यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज योर ओरिजिन। सो यू कैन से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, ठीक है। सेम विथ y एक्सिस ऑल्सो, यू कैन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। This is your x axis, this is your y axis. Horizontal is your x axis and vertical is y axis. Now it is saying you have a line. So we can say first one, it is saying x is equal to 5. So x is equal to 5, which so first one it is saying x is equal to 5. So here we can say, so your line will go like this way. Okay. So this is your x is equal to 5 way. So it will go like this way. So you can write here x is equal to 5. Same way second line, we can draw the second line also. So second line it is saying y is equal to 7. So which means this is parallel to x axis. So y is equal to 7. So you can see this is y is equal to 7. Now you can say at which point they both will intersect. So this will x will be 5 and y will be 7. Okay, so this way you can draw the line, and at last you can say x and y, the line intersects at x is equal to 5 and y is equal to 7, ठीक है। तो बस ये बनाना है, तो इसको हाँ थोड़ा अच्छे से आप यहाँ पे स्केल मार्क ये सब यूज करके आप बनाना, ठीक है। नाउ सेकंड नेक्स्ट वन इट इज सेइंग अगेन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड find whether the pair of linear equation x is equal to 0, y is equal to -3 consistent or not. सेम वे आप जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ बनाया, सेम वे आपको इसको भी वैसे ही बनाना है। तो सेम वे आप लाइन ले लो, ठीक है। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y axis, and now here it is saying negative y, so we have to take a negative y axis also, ठीक है। तो here you can say first we will mark this is your origin, this is 1, 2, okay, 1 second. So you can mark here 1, 2, 3, 4, 5. Same with here -1, -2, and you can increase little bit more. So -3, and now you can draw the x is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is your origin. Okay, now here it is saying your first line will be x is equal to 0, means this x will pass like this one parallel to x axis. We can say x is equal to 0. Second, y is equal to -3. So your y will pass from here. So y is equal to -3. X axis you can say it will be further go from here also, go downward also. Okay, so you can say here your x and y will intersect at where? This point. So this point is called 0, -3. So you can say the line intersects at 0, -3. Okay, so it will be form intersect lines. Okay, hope you're getting clear. Now coming about next question, again 2023, it is saying half the difference between two number is 2. The sum of greater number and twice the smaller number is 13. Find the number. So again this type of question, word problem, so you have to make careful about that. So here we can say first one, it is saying half the difference between two number is 2, and the sum of greater number
the twice the smaller number is 13. So we can say, hey, let x and y two number, x and y are two number. Okay. Now in a such a way so that x is greater than y. Okay. Now according to question it is saying this sum, it is saying difference of two number is 2. So difference of difference between two number x minus y by half. So x minus y difference of two number by half is 2. So you get the first equation. Now you can solve here. So this 2 will transfer. So you can say x minus y is equal to 4. This you got a first equation. Okay. Now same way it is saying the sum of greater number and twice the smaller number is 13. So you can say sum of the greater number and twice the smaller number. So you can say a greater number is x and a smaller number is 2y is equal to how much? 13. So you got the second equation here. Now, so you can solve this two equation by substitution or elimination. So we can say, okay, let's try with this substitution. So x is equal to 4 minus y. 4 minus 4 plus y. Okay, we can say now we can substitute the value of x in equation. Substitute value of substitution मेथड में एक चीज हमेशा आप याद रखना. Now I have taken the x value from equation 1. So I will substitute the value of x in equation 2. So substitute the value of x in equation 2. Okay, equation 2. So here you can say for your equation 2 is x plus 2y is equal to 13. So you can say x plus 4 plus y plus 2y is equal to 13. So which means 4 plus 3y is equal to 13. Now here you can say here, so which means 4 will transport to other side. So you can say 3y is equal to 13 minus 4. So you will get 3y is equal to 9. So y is equal to how much? 9 over 3. So you will get 3. Okay, so y value you will get 3. Now substitute the value of y in any equation. So we can say, hey, we will substitute in the first equation. So how much your first equation? X minus y is equal to 4. So x minus 3 is equal to 4. So x is equal to 4 plus 3, 7. So which means your x value is 7 and y value is 3. So hope you understand how to solve this type of question word problem. So hope you understand this all the questions about the linear equations and everything previous year. So I try to solve the 2024, 23 as well as 22 question also. And also I will share you the 2 to 3 year extra question paper along with the solution. So you can check out your Telegram link. Okay, you can follow the Telegram link. You will get every subject question paper, every topic wise, and you can along with the answer. So it will easy for you to understand and easy for you to write the answer. Okay, so kindly follow our Telegram channel and also most important, follow our social media channels for latest updates of our videos. Okay, and participate in the quiz and kindly follow all our social medias. Okay, so thank you for watching the video. Have a good day and all the best for your examination.